इसमें भर दे, चलो जिंदगी को आसान कर दे, प्यार की खुशबू इसमें भर दे, प्यार की खुशबू इसमें भर दे। बुरे फासलों के दुश्मन बनेंगे, मिटाएंगे दूरी, उन्हें जीत लेंगे। बुरे फासलों के दुश्मन बनेंगे, मिटाएंगे दूरी, उन्हें जीत लेंगे। करे फैसला अब ये दुनिया बदल दे, करे फैसला अब ये दुनिया बदल दे, प्यार की खुशबू इसमें भर दे, चलो जिंदगी को आसान कर दे, प्यार की खुशबू इसमें भर दे, प्यार की खुशबू इसमें भर दे। अलग जिस्म है तो अलग जान होगी, एक ही फिर भी पहचान होगी। अलग जिस्म है तो अलग जान होगी, एक ही फिर भी पहचान होगी। इंसान है हम, चमन को खबर दे, इंसान है हम, चमन को खबर दे, प्यार की खुशबू इसमें भर दे, चलो जिंदगी को आसान कर दे, प्यार की खुशबू इसमें भर दे, प्यार की खुशबू इसमें भर दे। खुद को बताए अकेले नहीं है, हम जैसे प्यासे दिए और भी है। खुद को बताए अकेले नहीं है, हम जैसे प्यासे दिए और भी है। अंधेरे जहां को उजाले का घर दे, अंधेरे जहां को उजाले का घर दे, प्यार की खुशबू इसमें भर दे, चलो जिंदगी को आसान कर दे, प्यार की खुशबू इसमें भर दे, चलो जिंदगी को आसान कर दे, प्यार की खुशबू इसमें भर दे। 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 Thank you so much, Mukund sir.
Thank you so much. Now we will continue with the program. Savitribai Phule was India's first woman teacher who not only advocated for education of girls but also, along with her husband Jyotiba Phule and companion Fatima Sheikh, set up many schools to provide education to girls and people who were socially discriminated. Savitribai, along with helping and providing food to poor people, also took care of people during the bubonic plague pandemic. And here we are, in the middle of a pandemic once again, looking up to her for inspiration and guidance. This lecture series is a small attempt to pay our tributes to Savitribai Phule for her contribution in the field of education and her strong vision for the society, which, even after almost 150 years, is relevant and inspiring to all of us. Now, I would like to invite Dr. Lidwin Dias, Principal of College of Social Work, for a formal welcome speech. Thank you, Vaishali. So good afternoon, friends, and a very warm welcome to our keynote speaker, Ms. Kamla Basi, writer, humanist, feminist, and social activist. I have heard so much about you, dear ma'am, and I'm so glad that you have made it possible to be with us this afternoon to share with us your thoughts, your ideas, and give your insightful speech to our students. I'd like to welcome all our organizers for this event, that is Dr. Prabha Tirmani and the members of the मॅडम म्यूट झाल्या. Okay, thank you. I think there were too many noises, that's why they muted all. In the process, I was muted. Okay, so thank you to Dr. Prabha and the members of the Women Development Cell and all the students, teaching and the non-teaching staff, and all the participants who are present here on this online mode of lecture series that we are having, the 10th lecture series on the Kranti Jyoti Savitribai Phule. In fact, when we were planning this whole Kranti Jyoti lecture series, I think in 2011 we started, and we have been doing it in very regular way, like on 3rd of January. At the most, the first week of January we used to have it. But this year, due to the pandemic, everything, our whole college schedule has been changed, and it was very difficult for us to have in the first week of December, January, mainly because of the exams that we were holding. However, we are very happy that at least in Jan itself, we can have this lecture series to commemorate the birth anniversary of Savitribai Phule. I'm sure that all of you have heard about Savitribai Phule. Students from Maharashtra for sure have studied and read about her life. There may be a few of you who are coming from different states and not heard it and been hearing it for the first time. Yes, the life of Savitribai Phule is a great inspiration to me. As a student, I remember when we were studying her life and the life of her husband Jyotiba Phule, I had a very great admiration towards this couple who, in their simple way, have transformed the society and brought meaning to the life of so many people, especially the marginalized communities. Savitribai Phule's contribution can be highlighted and been seen immensely in the field of girls' education and women's empowerment. Savitribai Phule and her husband Jyotiba Phule together had several schools of girls' education, but did not limit to that. Rather, raised awareness against social evils such as child marriage, women's rights, and caste discrimination. She was a determined lady who bravely went on doing what she was convinced of
in spite of people throwing dirt and dung on her and her colleague Fatima Sheikh. She has passionately worked towards girls' education and nothing has stopped her. Her visionary spirit has helped her to initiate several works along with her husband, Mahatma Phule. Some of these works have been working against untouchability and abolishing caste and gender-based discrimination. A care center, infanticides, a provision home for rape victims and pregnant women, Brahmin women who can deliver their children in a safe and secure place, and thus preventing the killing of widows as well as reducing the rate of infanticide. Satyashodak Samaj to free Sudra, Dalit women and other less privileged ones from getting oppressed and exploited. There were other initiatives of hers like Mahila Seva Mandal, which worked for raising women's consciousness about their human rights and dignity and other social issues. She adopted a child from Brahmin widow called Kashibai, thus sending a strong message to the progressive people of the society. Her adoptive son, Yashwantrao, grew up to become a doctor. In 1897, when the worldwide third pandemic due to the bubonic plague badly affected the area around Maharashtra, she along with her son courageously opened a clinic at the outskirts of Pune to treat the patients infected by this disease. In course of time, she contracted the disease herself while serving the patients and succumbed to it and died on March 10, 1897. We are now in a pandemic situation, and today's theme on women's wisdom during the pandemic, Savitribai's response to crisis and work towards social change is very apt, for we have seen her as an inspiration, an inspirational icon who risked her life and took up challenges to bring justice, education, empowerment, and reach out to all, and sacrificed her life for others. Without taking much time, I want to end with one verse from her famous poem. If you have no knowledge, have no education, and you yearn not for the same, you possess intellect, but work not on the same, how then can you be called a human being? As we reflect on this, let us be responsible human beings and together bring about a change in the society. Thank you. Thank you so much, ma'am, for that informative, insightful, and a very warm welcome. We will now move forward with the program. I know that most of you have had the privilege to know about Savitribai Phule and about her life, but I'm sure that there are still many more things to know about her. So now let's learn more about Savitribai and her life journey from her only. Now we will have a very special act by Mayuri of MSW2 who will play the role of Savitribai Phule in a monologue act. So let's all welcome Mayuri. माहौल में सबसे पहले मैं कॉलेज ऑफ सोशल वर्क निर्माण के प्रिंसिपल डॉक्टर लिलिबिन डायस, WDC के कन्वीनर डॉक्टर प्रभा तिरमारे, मेंबर्स रेणु जी और स्मिता जी, इनको धन्यवाद बोलना चाहूंगी ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए। क्या आपने पहचाना मुझे? मैं सावित्री ज्योतिबा फुले, सातारा जिले से खंडोजी निवासी पाटिल की कन्या। 9 साल की उम्र में मेरी शादी ज्योतिबा फुले इनके साथ हुई। आज मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पे सब टीचर्स, स्टूडेंट्स, सोशल वर्कर्स और सोशल एक्टिविस्ट को देखते हुए। आज हमारे साथ कमला जी भी है
जो हमारे देश में पुरुष और महिला समानता लाने के लिए काफी योगदान दे रहे हैं। 1 जनवरी 1848 में मैंने पुणे के भिड़ेवाड़े में मेरी सहेली फातिमा शेख इनके साथ सब धर्म के बेटियों के लिए पहली पाठशाला शुरू की थी। भारतीय इंसान ने भारतीय लोगों के लिए शुरू की हुई ये पहली पाठशाला थी। बहुत संघर्ष करने के बाद मैं मेरी बेटियों को पढ़ने का अधिकार दे पाई। उस वक्त मेरा बहुत छोटा सपना था कि मेरे बेटियां घर से बाहर निकले, पढ़े लिखे और इस समाज में अपना अस्तित्व निर्माण कर सके। पर आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे बेटियां घर से बाहर निकल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आसमान में उड़ान ले रही है, अपनी काबिलियत को पहचान रही है और अपने हक के लिए मांग कर रही है। कोई डॉक्टर है, कोई पुलिस है, कोई सामाजिक कार्यकर्ता है, कोई पायलट है, कोई देश की पंतप्रधान है, कोई मंत्री है। और इन हर क्षेत्रों में हमारे महिलाओं को देख के, लड़कियों को देख के मुझे बहुत खुशी मिलती है। और जी हाँ, मैं देख रही हूँ 2019 और 20 के कोविड-19 के महामारी में बहुत सारे महिलाओं ने और लड़कियों ने अपना योगदान दिया है, अपने घर की, अपने समाज की, अपने देश की रक्षा की है। और मैं बोलूंगी कि 150-200 साल मेरी भी मृत्यु ऐसे ही प्लेग करके महामारी में हुई थी, जनसेवा करते समय। इसलिए यहाँ सब बैठे हुए सभी को मैं निवेदन करती हूँ कि आप जब कोविड-19 की महामारी में समाज सेवा करते हो तो आपका ख्याल रख के ही समाज सेवा कीजिए। इसलिए मैं आपको निवेदन करती हूँ कि आपका योगदान अच्छी तरीके से दे दीजिए। लड़कियों ने पढ़ने का मेरा सपना तो पूरा हो रहा है, पर दुख इस बात का है कि इतने सालों के बाद, हमारे देश को आजादी मिलने के बाद भी पुरुष और महिला को लेकर भेदभाव किया जाता है, उनको समान अधिकार नहीं दिया जाता। बहुत सारे महिलाएं स्त्री भ्रूण हत्या, बलात्कार, एसिड अटैक, घरेलू हिंसा, इन सारी अत्याचारों को सामना कर रही है। और हम सबको पता है कि हमारे देश में जो पितृसत्ताक है, हुकुमशाही है, धर्मशाही है, एक जहर हमारे समाज से इतने जल्दी से नहीं जाएगा। इसलिए हम सबको एक साथ आकर इस लैंगिक असमानता को, अत्याचार को मिटाने के लिए मानव जाति को समान हक, अधिकार और सम्मान देने के लिए एक साथ आने की कोशिश करनी चाहिए। आप सब टीचर्स लोग, स्टूडेंट लोग, सोशल वर्कर्स, सोशल एक्टिविस्ट साथ में आएंगे और कोशिश करेंगे तो यही मेरे लिए आपकी तरफ से अच्छी श्रद्धांजलि रहेगी। सब महिला और लड़कियों को मेरी विनती है कि आप मेरे से और अच्छा योगदान इस समाज में, हमारे देश के विकास के लिए दे दीजिए और अपना भरोसा मत गवाइए। महिलाओं के अधिकार के साथ साथ इंसानियत के अधिकार के लिए भी लड़ने के लिए, संघर्ष के लिए, और यही मेरा अभी का सपना है। मैं बहुत खुश होती हूँ जब मेरे देश के युवा, बालके, महिला, युवती मुझे लेके हर साल जन्मदिन मनाते हैं, कविताएं लिखते हैं, गाने और अच्छे विचार लिखते हैं। और आज हमारे साथ कमला जी भी है जो मेरे विचारों को आगे बढ़ाने के लिए योगदान दे रही है। इसलिए मैं इसी खुशी को लेके मैं एक गाना पेश करना चाहती हूँ जो आप लोगों ने मुझे लेके एक तैयार किया था। साऊ पेटती मशाल। साऊ पेटती मशाल, साऊ आगती जळाल, साऊ पेटती मशाल, साऊ आगती जळाल, साऊ शोषितांची डाल, साऊ मुक्तीचं पाऊल, साऊ पेटती मशाल, साऊ आगती जळाल, साऊ पेटती मशाल, साऊ आगती जळाल, साऊ शोषितांची डाल, साऊ मुक्तीचं पाऊल। साधा दिली पाखरांना सार रान धुंदळून, साधा दिली पाखरांना सार रान धुंदळून, पड पडले ते पंख झेपावल नव गाणं, पड पडले ते पंख झेपावल नव गाणं, साऊ वाघीन अमुची तीन फोडली डरकाळी, साऊ वाघीन अमुची तीन फोडली डरकाळी, थरला घसा कोऱ्यागड ढासलली बाई, साऊ पेटती मशाल, साऊ आगती जळाल, साऊ पेटती मशाल, साऊ आगती जळाल, साऊ शोषितांची ढाल, साऊ मुक्तीचं पाऊल।
फिर से मिलेंगे। धन्यवाद। Thank you so much, Mayuri, for that special performance. We have surely learned so much more about Savitri Bai from her perspective. Now, moving on, I would like to invite Dr. Prabha Tirmare, convener of Women Development Cell, to introduce the speaker and to give a background note on Kranti Jyoti Savitri Bai Phule lecture series. So please welcome Dr. Prabha. Ma'am, excuse me, ma'am, you're on mute. Thank you, Vaishali. While saying good afternoon to all, I'll just say that what we do not have. We have everything. We have good people, we have good places, we have good material, and we have good energy, good thoughts. And in all that, we have Kamla Bhasin ji हमारे साथ. कमला बसिन जी की मुलाकात करके देने के पहले मैं थोड़ी सी ओवरवेल्म हो गई हूँ. मयूरी ने जिस तरह से आज की सावित्री आपके सामने फरमाइश की, मयूरी बहुत आपका कौतुक है, अभिनंदन है, because you did not got even 10 hours to prepare yourself, and in the 10 hours yesterday morning we told you, and you prepared beautiful video, and today you are live, and we got lots of energy from your presentation, from your expression. Thank you so much. So now, while welcoming Kamladi, behalf of Dr. Lidwin, behalf of our Daughters of Heart of Mary, DHM, who is our backbone support. Our management is our backbone support. I'm happy to have the celebrations. Why I'm saying celebrations? Because it is a joyful moment. And on 3rd January, traditionally, when Savitri's 119th birth anniversary celebrated in Maharashtra, काफी social reformers, activists, academicians ने decide किया था अपने घर में पंक्ति लगानी है, रंगोली करनी है, और ये थॉट का फेस्टिवल हमको सेलिब्रेट करना है. आज तो हम कर नहीं पा रहे. मैंने खुद के लिए थोड़े से आजू बाजू में मेरे पौधे रखे हैं, और उसी के साथ साथ आप सब लोग यहाँ पे है, मौजूद है. बहुत अच्छा लग रहा है. नाउ कमला बसिन जी और हमारी बातचीत होके शायद 1 महीने से ज्यादा टाइम हो गया है. तभी से कुछ विचार मन में आए थे. कमला बसिन नाम तो सुना था, किताबों में पढ़ा था, सुनने की चाहत थी. आज मौका है, सुनेंगे, सुनते रहेंगे. मिलने की ख्वाहिश है, प्रयास जारी रहेगा. मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, कहीं ना कहीं. So today it's our virtual meet, Kamla ji, but definitely as you express your wish to be with us in our college, we will see how we'll be creating spaces for our meetings and greetings for common cause to connect everybody and take for our further directions. So with my personal emotions and feelings, now I'm turning to introduce you, and I'm grateful to Nidhi Gupta for providing me very, very precise profile of Kamla ji, and not to miss anything which is very, very important, significant. There are names of organizations, there are some names of some kind of initiatives. So please listen carefully. What is her contribution? Kamla Bhasin has been actively engaged with issues related to development, gender, education, media, and others since 1970. Currently, she works with Sangat, a feminist network, as advisor, as well as Jagori organization, a women's resource and training center, and Jagori Rural Charitable Trust, as an active member. She is the South Asia coordinator of 1 Billion Rising. What is 1 Billion Rising? You will understand if I'll be explaining a little more. A global campaign to end violence against women and girls.
She is co-chair of the World Wide Network Peace Women Across the Globe and member of South Asians for Human Rights, that is SAHR. Prior to this, she worked with the Food and Agriculture Organization of the United Nations for 27 years. Kamala Bhasinji is deeply engaged with issues related to gender, man, and masculinities, feminism, sustainable livelihoods, peace, identity politics, militarization, human rights, and democracy, and seeks to explore and articulate connections between these issues to promote synergies between different movements. Her main work is at the South Asian level and has included capacity building of South Asian and other young activists and networking among civil society organizations. In South Asia, she has also been conducting gender sensitization workshops for senior non-governmental organization leaders and managers, government officials, policy personnel, and members of parliament in various countries in South. It gives us impression that from grassroots to global level, she has her engagement with different type of groups. Besides that, she has been writing and she spoke extensively on gender, women's empowerment, participatory and sustainable development, participatory training, media and communication. Most of her books are written for activities and development workers. She has also written a large number of songs and slogans. For example, Tod Marda Tod Hi Chakori. I think कमला जी ये आपका ही गाना है, नहीं हो तो मेरे को आप बाद में करेक्ट कर सकते हैं. And slogans like एक और एक 11, ये है हमारा नारा. She will give more insights you on that. She's written books for children and has created many posters and banners for various people's movements. She is committed to creation of a peaceful, democratic and pluralist South Asia. She stays in Delhi, works with Sangat Jaguri. That is her address to meet. But besides that, students and all thinkers on this platform, if you want to meet her, YouTube is open for you, books are open for you, poems are open for you, her TED Talks is open for you, her posters are open for you. So anywhere you go, you will see her. I'll be just make mention of few of her contribution, and that is published by UNICEF and some other publishers. One is Exploring Masculinity. All of should be reading that. Understanding Genders, which is very important. Malu Bhalu, ये भी इनकी किताब है. Border and Boundaries भी किताब है. What is Patriarchy? That is also her book. So besides this, जो ये पर्सनालिटी है, कमला भसीन पर्सनालिटी हमको बहुत प्रेरित करने वाली है. ये फॉर्मल उनकी इंट्रोडक्शन होने के बाद जब मैं उनकी रिसर्च कर रही थी, एक दो चीजें मेरे को बहुत पसंद आई है. एक है कि जो विषय है, कोई भी विषय जो प्रेजेंट करते हैं, जो गंभीर विषय भी है, वो इजी सिंपल बनाते हैं, सो दैट गंभीरता से किसी के कान बंद न हो, किसी के ब्लॉग्स तैयार न हो. ये जो खासियत है, मेरी जो बेटी है सानिया, उन्होंने मेरे साथ शेयर की है. थैंक यू सानिया फॉर दैट. सेकेंड more important thing is, for long life of hers, she was not much aware about the word gender or word feminism. She did not have idea about that, but slowly, gradually, when she started observing, talking with people, observing, she developed insights about what mean by gender, what mean by feminism. She started writing and writing. Besides that, I think we should be giving more time Kamalaji to talk with us, to have dialogue with us. She has several questions which she'll be asking to us, but I should not wind up by connecting with my limited knowledge about some of the writers and poets. I compare her with Astrid Lindgren, Swedish writer and poet, whose very, very famous book is Pippi, and Pippi Longstocking, who is strongest lady. Similarly, Kamaladi wants all of us to be very strong, very energetic, and with this inspiration, Kamalaji, we all from NN would like to welcome here with us for your present
connection and longer connection. Thanks. So, freedom, equality, dignity and rights for all, Zindabad. Universal Declaration of Human Rights, Zindabad. Indian Constitution, Zindabad, which we will be celebrating tomorrow on the 26th of January. Friends, I normally avoid formalities like thank you for inviting me, etc. But today, I will not avoid it. I will say that I am really happy to be invited by Nirmala Niketan because I have admired this institution for a very long time. And now this institution has invited me. I actually feel quite proud of myself. So, and before I begin, I wish to salute the 3 feminist founders of Nirmala Niketan, of the Daughters of the Heart of Mary, Paiva Kausiro, Colette Galbi, and Dorothy Baker. These 3 feminists started Nirmala Niketan in 1955. In the last 65 years, this institution has prepared thousands of social workers, many of whom are actually social activists. Amazing contribution of Nirmala Niketan towards development work, especially for marginalized groups. And friends, I heard your college anthem first 2 days ago when I Googled you, and then today. चलो जिंदगी को आसान कर दें, प्यार की खुशबू इसमें भर दें. I'm happy to sing this line again and again. प्यार की खुशबू अपनी जिंदगी में भर दें. मैं खुश इसलिए हूं क्योंकि हम लोग भी संगत में बिना शर्माए मोहब्बत की बात करते हैं, लव की बात करते हैं. और मुझे दुख होता है कि ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज आज भी ये 4 लेटर वर्ड लव उसका इस्तेमाल करने में शर्माते हैं. तो मैं मानती हूं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. इन संगत we believe that love of power and love of control is behind every injustice. A husband loves his power, beats up his wife. A sarpanch loves his power, does not listen to the local people. A country loves its power and goes and bombs any country it wants. The capitalist loves his power and exploits people. This is love of power. And unless we reverse this and talk of power of love, no change can come, at least no change for equality for all, justice for all. Power of love takes care of the marginalized, takes care of the last person. Power of love का मतलब है inclusion, समानता. Power of love का मतलब है हर शोषण का मुकाबला करना, हर हिंसा का मुकाबला करना. और मैं मानती हूं कि हमें पावर ऑफ लव की बात सिर्फ पर्सनल लाइफ में नहीं करनी चाहिए, सिर्फ घरों में नहीं करनी चाहिए. मैं समझती हूं कि पावर ऑफ लव हमारी यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, हमारी पॉलिटिक्स में और हमारी इकोनॉमिक्स में आना चाहिए.
Power of love means walking the path of all the wise people, like Gautam Buddha, like Jesus Christ, like his mother, Mary, like Prophet Muhammad, like Guru Nanak, like Periyar, like Baba Sahab Ambedkar, Kabir. मोहब्बत का रास्ता इन सब का रास्ता है. And I feel that power of love is the biggest wisdom of every wise person, woman or man, Savitri Bai or Jyotiba Phule. And friends, after studying Savitri Bai for many years, I feel it was power of love which ignited and propelled Savitri Bai Phule to be who she was and to do what she did. Savitri Bai's life shows us that flowers can bloom even in the creeks of stones. चट्टानों में भी फूल खिल सकते हैं. मुसीबतों में भी लोगों की पर्सनालिटी चमक सकती है. अब उनकी जिंदगी देखिए, 9 साल में शादी हो गई. 9 साल में स्कूल नहीं गई और 13 साल के एक लड़के से शादी कर दी. तब किस्मत देखिए, उनकी लॉटरी खुल गई. वो लड़का जिससे उनकी शादी हुई, वो पति परमेश्वर, स्वामी, मजाजी खुदा नहीं बनना चाहता था. वो सावित्री बाई का हस्बैंड नहीं बनना चाहता था. हस्बैंड का मतलब मालूम है? हस्बैंड का मतलब होता है डोमेस्टिकेटर, जो एक आजाद जानवर को, आजाद इंसान को डोमेस्टिकेट कर दे, पालतू बना दे. ये उस शब्द से आता है, एनिमल हस्बेंड्री, इसी से बना है. तो सावित्री क्या पार्टनर बनना चाहता था, उसका मालिक, उसका स्वामी नहीं बनना चाहता था. ही वॉज अ ट्रू लाइफ पार्टनर who respected her, who gave her full equality. And friends, that marriage, that partnership reminds me कि कितनी सारी शादियां इसके बिल्कुल उल्टी होती हैं. शादी जो शब्द है उर्दू का, ये शाद से बना है. शाद का मतलब खुशी. कितनी सारी शादियों में शाद, खुशी कहीं दिखती नहीं है. मालिक बनके 24 घंटे पति बैठे रहते हैं. औरतों के रास्ते में कई बार सबसे बड़ी रुकावट ये पति खुद डालते हैं. And in the case of Savitri Bai and Jyotiba Phule, who was a true human being, a young seeker of truth, of education, and who believed in equality and human rights for all. ज्योतिबा ने देखा कि सावित्री के अंदर भी एक चमक थी, उसके अंदर भी एक ज्योति थी, और उन्होंने उस ज्योति को बाहर निकाला, उसको सपोर्ट किया. और मुझे लगता है कि इन दोनों साथियों ने एक दूसरे को चमकाया, निखारा, और पूरी दुनिया को, कम से कम पूरे हिंदुस्तान को बताया कि शादी कितनी खूबसूरत, कितनी क्रिएटिव, कितनी सुंदर हो सकती है अगर हम चाहें और कोशिश करें. दोस्तों, to me, Jyotiba and Savitri's partnership is one of the finest partnerships. Comradeship. This is a partnership which is both personal and political, because that marriage was between two feminists, a man feminist
and a woman feminist. And when? 180 years ago. And now, just close your eyes gently and think of villages in Maharashtra where this couple lived 180 years ago as a couple. She was born 190 years ago. क्या दुनिया थी वो, क्या हिंदुस्तान था वो जहां अंग्रेजों का राज था। छुआछूत अपनी ऊंचाई पर थी, गरीबी अपनी ऊंचाई पर थी, पितृसत्ता अपनी ऊंचाई पर थी, और वहां पर इन दो इंसानों ने अपनी जिंदगी शुरू की। और जल्दी ही इनकी जिंदगी में एक और पार्टनरशिप इनको मिली, और वो पार्टनरशिप थी फातिमा शेख और उनके भाई उस्मान शेख की। वो भाई बहन जबरदस्त पार्टनर थे और दोस्त थे इन दोनों के। तो मैं इन चारों लोगों को सलाम करती हूं, उनकी स्तुति करती हूं। और आप सबको पता है कि जब ज्योतिबा को और सावित्री को ज्योतिबा के पिता ने घर से निकाल दिया, क्योंकि उनके ऊपर ब्राह्मणों का जोर था कि तुम्हारा बेटा और तुम्हारी बहू गलत काम कर रहे हैं, वो हमारी लड़कियों को बिगाड़ रहे हैं, उन्हें शिक्षा देना चाहते हैं, तो हमारे कहने से वो लोग नहीं माने हैं, आप उनको मना कर दीजिए। मना किया ज्योति के पिताजी ने, ये लोग नहीं माने, तो डर के मारे, क्योंकि ब्राह्मणों ने कहा था कि अगर तुम नहीं उनको मना करोगे हम तुम्हें गांव से निकाल देंगे। पिता डर गए, इनको निकाल दिया घर से। ये दोनों 15, 16, 17 साल के निकले, मालूम नहीं था कहां जाएंगे। और फिर से किस्मत देखिए, उस्मान शेख इन्हें अपने घर ले गए। उस्मान और फातिमा किसी और धर्म के, लेकिन उनके लिए और ज्योति और सावित्री के लिए धर्म से बड़ा था इनका विश्वास, इनकी आइडियोलॉजी, इनका पॉलिटिकल बिलीफ। इट वाज स्ट्रॉन्गर देन ब्लड लिंक्स, इट वाज स्ट्रॉन्गर देन रिलीजन। अब देखिए, सावित्री और फातिमा 15-16 साल के थे जब उन्होंने इस काम की शुरुआत की, जब उन्होंने पूरे गांव को दुश्मन बना दिया। इमेजिन करिए, आप जो कॉलेज में हैं, आज 20 साल की हैं और एक आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुई हैं, बार बार जरा सोचिए उस माहौल को और वहां जाने की कोशिश करो। इन दो लड़कियों ने, युवतियों ने 16-17 साल की उम्र में हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी, जो दोनों उनके खिलाफ थी, उनका मुकाबला करने की हिम्मत की। और अब जरा सोचो दोस्तों कि अगर आज आपके घर कोई आपकी सहेली आ जाए निर्मला निकेतन की, जिसके ऊपर कोई मुसीबत आई है, क्या आज भी आप उसको अपने घर रख पाएंगे? क्या आपने अपनी जिंदगी में देखा है कि कितनी फेमिनिस्ट्स ने किसी और औरत को अपने घर में रखा है? हमारे नारे बड़े बड़े हैं, द पर्सनल इज द पॉलिटिकल, सॉलिडेरिटी, मगर सॉलिडेरिटी घर के दरवाजे तक आती है, घर के अंदर नहीं आती। मगर फातिमा शेख का तो दरवाजा ही नहीं था, ना तो उसके दिल का दरवाजा था, ना उसके घर में ऐसा दरवाजा था जो एक हिंदू कपल को, जिसको घर से निकाल दिया गया है और जिसके खिलाफ पूरा गांव है, तो उन दोनों के लिए दरवाजा खोलने का मतलब था
हर मुसीबत के लिए, हर दुश्मनी के लिए भी दरवाजा खोलना। तो जरा ये जो भी हम लोग कह रहे हैं सावित्री के बारे में, इसको सिर्फ दिमाग से मत सुनो दोस्तों, इसको थोड़ा दिल से सुनने की कोशिश करो। तो दोस्तों, as you can hear, I am most impressed and inspired by the friendships and partnerships of these 4 people, teenagers, all 4 of them. For me, their life is a proof of my slogan, 1 + 1 = 11. 1 और 1 11. I call this 1 + 1 = 11 feminist mathematics. Friends, I believe without friendships, love, and the power of solidarity, there can be no social transformation towards equality, justice, and human rights. I wish our families, schools, and colleges, and schools of social work would teach us love, would teach us that the heart and the mind must work together. हम लोग सिर्फ माइंड पर काम करते हैं, जबकि आज साइंस कहती है, साइकोलॉजी बताती है कि जो बदलाव है वो थॉट से कम आता है, इमोशन से ज्यादा आता है। आई चेंज व्हेन आई एम इमोशनली मूव्ड। अब पेट्रियार्की में तो लड़कों को तो इमोशंस अलाउड ही नहीं है, और लड़कियां भी जो एक मर्दानी दुनिया में कदम रखती हैं, जो एकेडमिक दुनिया में कदम रखती हैं, उनको भी अपने इमोशंस को मारना पड़ता है, उनको भी सिर्फ दिमाग को आगे ले जाना पड़ता है और लॉपसाइडेड बना दी जाती हैं, बिकॉज पेट्रियार्की कहती है कि रैशनल हो तो इमोशनल नहीं हो सकते, और पेट्रियार्की और कैपिटलिज्म कहते हैं कि रैशनैलिटी सुपीरियर है। आई रिजेक्ट दैट रैशनैलिटी इज सुपीरियर, एंड आई थिंक सावित्री बाई की जिंदगी में आप देख सकते हो कि अगर उसके अंदर कंपैशन ना होता, इमोशंस ना होती, तो वो कभी भी आज 190 साल के बाद एक मॉडर्न यूनिवर्सिटी, मॉडर्न कॉलेज में उनके ऊपर भाषण ना हो रहा होता। तो दोस्तों, आई सैल्यूट every foremother like Savitri and Fatima, every forefather like Jyotiba and Usman Sheikh, जिनके कंधों पर आज हम खड़े हैं। उन्होंने अगर हमारे लिए काम न किया होता, हमारी शिक्षा के लिए काम न किया होता, तो मैं आज ये भाषण न दे रही होती। आप लोग अपने जूम पर बैठकर ये भाषण न सुन रहे होते। ये उनकी देन है। और मैं जवान दोस्तों आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या हमारी भी तैयारी है कि हम भी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ रास्ते बनाएंगे, उनके रास्ते से भी कुछ क्या कांटे हम चुनेंगे। और मैं यहां अब ऑनेस्टली आपको ये भी बताता हूं कि मैं 75 साल की होने वाली हूं। मैं आज भी भाषण क्यों देती हूं? मैं भाषण इसलिए देती हूं क्योंकि मैं हर जगह जाके फेमिनिस्ट्स रिक्रूट करना चाहती हूं। आपके पास भी मैं रिक्रूट करने आई हूं, नए फेमिनिस्ट ढूंढने आई हूं, ताकि आप मेरे जैसे रिटायर हो जाएं और बाहर बैठ के तालियां बजाएं आपके लिए। तो दोस्तों, मुझे
प्रभा जी ने आपसे पूछे बिना कोई 70 मिनट दिए हैं बोलने को, और मुझे लगता है कि 70 मिनट तो मैं बोलूंगी, तो जरा शांति से बैठते हैं। तो द थीम ऑफ टुडेज टॉक, as your principal mentioned also, women's wisdom during the pandemic. Savitri Bai's response to crisis and work towards social change. तो मैं पहले जरा इस पैंडेमिक को ले लेती हूं। I find it amazing that today's mainly men leaders, people in power, are talking about COVID-19. And my God, talking क्या मतलब 9 महीने से इस पर बात करना नहीं छोड़ा। मगर ये मर्द लीडर्स, ज्यादातर मर्द लीडर्स, दूसरे पैंडेमिक्स पर चुपचाप खामोश रहते हैं, दूसरे वायरसेस की बात ही नहीं करते। कोविड-19 ने करीब 2 मिलियन लोगों की मृत्यु की है पूरी दुनिया में, और जो दूसरे वायरसेस जिनकी मैं बात कर रही हूं, उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस की जिंदगी ली है। पेट्रियार्की, अभी 5 महीने पहले यूएनएफपीए ने एक रिपोर्ट लिखी और कहा कि पेट्रियार्की ने दुनिया में 140 मिलियन औरतों और बच्चियों की जान ली है। 140 मिलियन वर्सेस 2 मिलियन, और इस 140 मिलियन में से 70 मिलियन ओनली इन चाइना एंड 46 मिलियन इन माई कंट्री, in Bharat Mata's country, in a country we say yatra naryastu ramante, पता नहीं क्या क्या, कि जहां औरतों की पूजा होती है वहां देवता बसते हैं। यहां तो 50 मिलियन लड़कियों को मार दिया गया, तो देवता तो नहीं बसते होंगे। दूसरे वायरस देख लीजिए, हिंदुस्तान में कास्ट वायरस ने पिछले 4000 सालों में कितने मिलियनों को मारा, भूखा छोड़ा, गरीबी में लताड़ा। रेस वायरस को देखिए, आज भी अमेरिका में ये वायरस कितना फैला हुआ है। पिछले 9 महीने में आपको अमेरिका में दिखा होगा। कैपिटलिस्ट वायरस को देखिए, कैपिटलिस्ट इनइक्वालिटी के वायरस को देखिए। कल ऑक्सफैम ग्रेट ब्रिटेन ने एक रिपोर्ट लिखी है yesterday, और पता क्या बताया है कि कोविड-19 के दौरान ये इनइक्वालिटी, असमानता कितनी तेजी से बढ़ी है। आज पूरी दुनिया के गरीब जहां मर रहे हैं, वहां दुनिया के बिलियनियर्स ने 3.3 ट्रिलियन डॉलर्स का फायदा कर लिया 9 महीने में। 10 बिलियनियर्स ने 540 बिलियन का प्रॉफिट कमा लिया। और हमारे देश में भी 2-3 बड़े बड़े हाउसेस ने कितने बिलियन डॉलर्स का फायदा उठा लिया। और आपको पता है कि इन 9 महीनों में 500 मिलियन नए लोग गरीबी रेखा के नीचे फेंक दिए गए। तो दोस्तों, why do you think our leaders do not talk about these viruses? और कोविड-19 के खिलाफ पड़े हुए हैं। जरा सोचिए, इनके बारे में क्यों नहीं बात करते वो? मेरे ख्याल से इनके बारे में वो इसलिए बात नहीं करते क्योंकि ज्यादातर वो औरत नहीं है,
ज्यादातर दलित नहीं है, ज्यादातर ब्लैक नहीं है और ज्यादातर गरीब नहीं है। वो तो सिर्फ अपनी बात करते हैं ना। और कोविड-19 ऐसा एक वायरस आया जो उनको पहले लगा, ग्लोब ट्रॉटर्स को पहले लगा, जो बिजनेस के लिए चाइना में घूम रहे थे और वो लेकर आए हमारे देशों में। मुसीबत किसकी आई? उन मजदूरों की जो 30-30, 40-40 दिन तक अप्रैल, मई, जून की गर्मी में पैदल अपने घर जा रहे थे। 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, क्योंकि सरकार ने 4 घंटे का टाइम दिया और किराए के लिए पैसे नहीं दिए, किराए के लिए बसें नहीं चलाई। हाँ, अमीरों को बाहर से लाना था तो एयर इंडिया चला, कोटा से अमीरों के बच्चों को लाना था तो एयर कंडीशन बसें चली। लेकिन जो देश को चलाने वाले हैं मजदूर, उनको पैदल जाना पड़ा, बहुतों को मरना पड़ा। दोस्तों, बड़ी गजब की बात यह है कि हमारे लीडर्स ने कहने के लिए इन चारों वायरसेस जिनका मैंने नाम लिया, क्लास, कास्ट, रेस, पेट्रियार्की, इन वायरसेस के लिए हमारी सरकारों ने वैक्सीनेशन बनाया है। पता है कौन सा वैक्सीनेशन? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये वैक्सीन था इन चारों के खिलाफ, जो 10 दिसंबर 1948 को लागू किया गया। हमारे देश के ताकतवर लोगों ने 26 जनवरी 1950 को एक वैक्सीन हमें दिया जिसका नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको कल हम मनाएंगे। मगर दुख की बात यह है कि ये वैक्सीन्स बना तो दिए मगर इन्हें लॉकडाउन में रखा हुआ है, इन्हें मोटी मोटी किताबों के अंदर रखा हुआ है, इन्हें वी द पीपल की बॉडीज में नहीं लगाया, वी द पीपल के दिमागों में नहीं घुसाया। ये कहने के लिए है कि हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, दलित, ब्राह्मण, औरत, मर्द, अमीर, गरीब बराबर है। और ये कहने के लिए है कि यहां प्रजातंत्र है। आप देख लीजिए, 60 दिन से ज्यादा हो गए हैं इस देश के अन्नदाताओं को सड़कों पर निकले, हमारे किसानों को सड़कों पर निकले, उनसे बात तक नहीं की जब उनकी जिंदगी का फैसला कर दिया गया। तो दोस्तों, आपकी और हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन का जो वैक्सीन है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन का जो वैक्सीन है, उसको सड़कों पर लाएं, उसको अपने घरों में ले जाएं, उसको अपने रिश्तों में लाएं, उसको अपने कॉलेजेस में लाएं। अब मैं आती हूं सावित्री बाई और उनका रिश्ता इन तमाम वायरसेस से, सिर्फ एक पेंडेमिक से नहीं। सावित्री बाई ने इन तमाम वायरसेस का मुकाबला किया, रेस का भी किया, क्योंकि वो अंग्रेजों के खिलाफ भी बोलती थी, लड़ती थी। She fought against patriarchy and its many forms and manifestations. Violence against women, rape of young widows, child marriage, lack of education of girls. So she fought against the virus of patriarchy. She fought against the virus of caste by providing education to Dalit girls, fighting for removing untouchability, supporting intercaste marriages. एक इंटरकास्ट मैरिज में 2 लोगों को मारने वाला था वो पूरा गांव,
जब सावित्री ने उनको कहा कि मैं जाके पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी, मैं जाके सरकार को बोल दूंगी, कलेक्टर के पास चली जाऊंगी, छोड़ दो इनको, मारोगे नहीं, और उनकी हत्या रुकवाकर उस कपल को अपने पार्टनर के पास पुणे भेजा, उनकी जिंदगी बचाई। She fought against class inequality by running night classes for farmers and workers. During famine, she organized food distribution centers, saved people from hunger and death. And Savitri adopted her son Yashwant, who became a medical doctor and helped people during the plague. That woman was so selfless that while serving people suffering from the plague, she caught the plague and died at the age of 66. What an amazing woman, what an amazing life. After Jyotiba passed on, she took over the responsibility of running the Satya Shodhak Samaj in search of truth, in the service of truth. She wrote extensive reports in the form of letters to her partner, Jyoti. She wrote poetry. She edited Jyotiba's writings. Savitri held dialogues with the British officers, went to them to oppose their policies, went to them to demand rights for the local people, services for the local people. And fortunately, the British officers heard her. And not only heard her, impressed by their work, the British government honored both Jyotiba and Savitri with recognition and awards. Sometimes I feel that the British were easier to convince than our democratic leaders today. तो दोस्तों, एक टॉक काफी नहीं है ज्योतिबा और सावित्री की जिंदगी को शेयर करने के लिए. What a journey, what a marriage, what a story of self-development and growth, what commitment and equality for justice and human rights. Once again, like I asked you earlier, एक बार फिर से आंखें बंद कर लो. 190, 180, 170 साल पुराने हिंदुस्तान में जाओ, वहां की मिट्टी की खुशबू सूंघने की कोशिश करो, वहां की बैलगाड़ियों की आवाज सुनने की कोशिश करो, और कंपेयर करो आज की हमारी जिंदगी और आज के हमारे मूवमेंट्स, कितना हम आज भी उनसे सीख सकते हैं. And now I'll talk of a few things about her wisdom. I think her biggest wisdom was the love in her heart, her bright mind, her management skills, her advocacy skills, her networking skills, alliance building skills. And she did not go to any school. She did not study in Nirmala Niketan. It all came from her inside. It all came from that amazing partnership with Jyotiba. It came from her friendships with Fatima and Usman. It came from her comrades in Satya Shodhak Samaj. तो दोस्तों, अगर दिल में प्यार हो, हिम्मत हो, जज्बा हो और कुछ लोगों का साथ हो,
तो जिंदगी जिंगालाला हो जाती है, जिंगालाला, क्रांतिकारी हो जाती है और क्रांतिकारी काम हो सकता है। मुझे पर्सनली सावित्री के जीवन से क्या क्या सीख मिली और क्या क्या अच्छा लगा, अब मैं बताती हूं। A modern so-called feminist looking at a feminist life 170, 80, 60 years ago. इन दोनों की जिंदगी देखकर मुझे समझ में आया कि शादी भी खूबसूरत हो सकती है, और अगर शादी खूबसूरत हो, पार्टनरशिप खूबसूरत हो, तो जिंदगी में क्या क्या हम हासिल कर सकते हैं। सावित्रीबाई ने नहीं चुना था अपना पार्टनर, मगर लॉटरी खुल गई। आज हम पढ़ी लिखी औरतें चुन सकती हैं, मगर चुनती नहीं है, अरेंज्ड मैरिज करवाने को राजी हो जाती हैं, इंट्रा कास्ट मैरिज ही करवाती हैं, उसी जात में करवाएंगी, इंट्रा रिलीजियस शादी ही करवाती हैं, किसी से भी बंधन बंधवा के और पूरी जिंदगी अपनी तबाह करने को तैयार हो जाती हैं। कन्यादान करवाती हैं, एमए की डिग्री है निर्मला निकेतन से, लेकिन कन्यादान करवा रही हैं। कन्या का दान चीज है, वो बाप उठा के एक दूसरे मर्द को पकड़ा देता है, और हम पढ़ी लिखी औरतें करवाती हैं। अगर इसके डिटेल चाहिए तो एक किताब है, मेरी एक दोस्त ने लिखी है, दीपा नारायण ने, उसका नाम है चुप। द बुक इज इन इंग्लिश बट द नेम इज चुप। फॉर दैट बुक दीपा interviewed 650 highly educated women from the finest institutions, and she finds out कि ये जो मॉडर्निटी है उनकी स्किन डीप है, स्किन डीप। पूरी जिंदगी कैसे वो पेट्रियार्की में जीती हैं, फ्रॉम देयर पेट्रियार्कल मेकअप्स टू देयर पेट्रियार्कल मैरिजेस, नेम चेंजेस। तो दोस्तों, मेरे को जो दूसरी चीज समझ में आई सावित्री जी से, वो ये आई कि नारीवादी बनने के लिए कोई किताब विताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, जिंदगी पढ़ने की जरूरत है, किताब नहीं, जिंदगी। नारीवादी बनने के लिए सिर्फ मन में यह विश्वास होना चाहिए कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बोर्न फ्री एंड इक्वल विद डिग्निटी एंड राइट्स। ये क्या है? ये आर्टिकल 1 है ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। मन में ये विश्वास होना चाहिए कि मैं बराबर हूं, मेरे अधिकार हैं, मैं आजाद हूं और मेरी इज्जत है और होनी चाहिए। नहीं होगी तो मैं संघर्ष करूंगी। मेरी है, मगर मेरे घर में काम करने वाली, जिसको हम मेड कहते हैं, उसकी नहीं है, तो भी मैं संघर्ष करूंगी। किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। सावित्रीबाई ने कोई किताब नहीं पढ़ी थी। तो दोस्तों, कि ये तीसरी चीज जो मुझे समझ में आई, आजकल हम बहुत बात करते हैं, नया शब्द हमने सीखा है अभी 5-6 साल पहले, इंटरसेक्शनैलिटी, कि फेमिनिज्म इंटरसेक्शनल होना चाहिए। उसमें सिर्फ जेंडर की बात नहीं होनी चाहिए, उसमें कास्ट की होनी चाहिए, क्लास की होनी चाहिए, रिलीजन की होनी चाहिए, रेस की होनी चाहिए। तो 180 साल पहले सावित्री ने क्या किया? इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म किया। कास्ट से झगड़ा किया, क्लास से झगड़ा किया, धर्मों के बंधन तोड़े और पेट्रियार्की से तो किया ही किया। इंटरसेक्शनैलिटी, विदाउट एवर हियरिंग दिस वर्ड, विदाउट एवर यूजिंग दिस वर्ड। तो दोस्तों, पीएचडी और एमए करने से इंटरसेक्शनल नहीं बनते, जिंदगी को देखने से बनते हैं, और बनना चाहिए।
कि हाउ कैन वी फाइट पेट्रियार्की अलोन विदाउट फाइटिंग कास्ट। अगर विजडम हो तो वर्ड्स जानना जरूरी नहीं है। द W फॉर विजडम इज एनफ, इज स्ट्रॉन्गर देन द W फॉर वर्ड्स। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पिछले 20 साल से कि कितना जरूरी है मर्दों को पेट्रियार्की को समझना और लड़कों और मर्दों को भी पेट्रियार्की के खिलाफ खड़ा होना। इन दोनों की जिंदगी से पता लगता है कि खड़े थे मर्द इनके साथ, और सिर्फ उस्मान और ज्योतिबाई नहीं, तमाम मर्द जो सत्यशोधक समाज के मेंबर थे, तमाम वो लोग जो एंटी कास्ट एंटी क्लास मूवमेंट में इनके साथ थे। Men against patriarchy, feminist men, because anyone who fights patriarchy is a feminist. My next learning, आज हमारा नारा है दोस्तों, फेमिनिज्म का सबसे बड़ा नारा है द पर्सनल इज द पॉलिटिकल। और इसके कई मतलब हैं। सबसे पहला इसका मतलब है कि ये जो डिवाइड पेट्रियार्की करती है कि डोमेस्टिक और पर्सनल अलग है और पब्लिक अलग है, ये डिवाइड बकवास है, हम नहीं मानते। दूसरा इसका मतलब है कि कमला जो भी अपनी जिंदगी में डिसीजन लेती है, पर्सनल डिसीजन, उसका असर पब्लिक पर पड़ता है। कमला कैसे कपड़े पहनती है, उसका असर दूसरों पर पड़ता है। कमला करवा चौथ करती है तो उसका असर दूसरे पर पड़ता है। कमला अपनी बेटी की शादी दहेज देकर करती है, कन्यादान करके करती है, तो उसका असर दूसरों पर पड़ता है। वो नहीं कह सकती दिस इज माई पर्सनल थिंग। मैडम, नथिंग इज पर्सनल, छोड़ दीजिए। एंड पर्सनल इज पॉलिटिकल का तीसरा मतलब है कि अगर बदलाव की शुरुआत करनी है तो मुझे खुद से करनी होगी। सावित्री और ज्योतिबा ने पर्सनल इज पॉलिटिकल को जिया। पहले खुद पढ़े, फिर अपनी पार्टनर को पढ़ाया, और फिर जाके समाज में और लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। पहले अपनी पत्नी को समानता दी, अधिकार दिए, ज्योति दी, और फिर समाज में यही काम करने की कोशिश की। अपने घर में शेल्टर बनाए। आप सोचिए तो सही, जो काम हम आज भी नहीं कर सकते, कर रहे, वो इन लोगों ने किया। यंग विडोज को अपने घर लाके शेल्टर दी, उनके बच्चे पैदा करवाए जो प्रेग्नेंट थी, उनको जिंदगी बख्शी। एब्सोल्युटली अमेजिंग। उनका पब्लिक और प्राइवेट इकट्ठा चला, पर्सनल और पॉलिटिकल इकट्ठा चला। तो दोस्तों, कोई हमको वेस्टर्न फेमिनिज्म को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सावित्रीबाई तो वो कर रही थी। हम कहते हैं कि वेस्टर्न फेमिनिज्म 110 साल पहले हुआ, और हम जितने भी फेमिनिस्ट हैं हम सब वेस्टर्न की नकल करते हैं। ये वो लोग कहते हैं जिनको अपनी हिस्ट्री नहीं मालूम, जिनको सावित्रीबाई की हिस्ट्री मालूम है, जिसको रमाबाई की हिस्ट्री मालूम है, जिसको मीराबाई की हिस्ट्री मालूम है, जिसको पेरियार की हिस्ट्री मालूम है, उसको वेस्ट से सीखने की कोई जरूरत नहीं है। मगर हाँ, अगर वेस्ट में कोई अच्छा आइडिया है तो हम जरूर सीखेंगे, क्योंकि आइडियाज की नेशनैलिटी नहीं होती, आइडियाज का मजहब नहीं होता। जो दूसरी चीज दोस्तों मैंने इन लोगों की जिंदगी से सीखी कि थ्योरी और प्रैक्टिस को इकट्ठा चलना चाहिए, और इनकी जिंदगी में चला। जमीनी काम, उस पर विचार, सत्य की खोज, उस पर लेखन इकट्ठा चला। The theory
and practice. They stood on both legs of theory and practice. They brought it together. आज हम बात कर रहे हैं हर मूवमेंट में अलायंस बिल्डिंग की जरूरत है, और 170 साल पहले ये क्या कर रहे थे? फेमिनिज्म, एंटी कास्ट, एंटी क्लास, रिलीजियस हार्मनी, सबके साथ अलायंसेस बना रहे थे। जब उस इलाके के नाई जवान विधवाओं के बाल मूंडते थे तो क्या किया इसने, सावित्री ने? नाइयों को, बार्बर्स को ऑर्गेनाइज किया सक्सेसफुली और उनसे कहा भाइयों शर्म करो, इन बच्चियों की सिर मूंडना बंद करो एक आने के लिए, आधे आने के लिए। और उन्होंने किया ये काम। उन्होंने कहा कि हम किसी जवान बच्ची का सिर नहीं मूंडेंगे, यह हमारे धर्म के खिलाफ है, हम इसको धर्म नहीं मानते। कैन यू इमेजिन दिस? आज हम बात करते हैं कि हमको एडवोकेसी करनी होगी, लॉबिंग करनी होगी विद द गवर्नमेंट। सावित्री बाई वो जाती थी कलेक्टर से बात करने, वो बात करती थी लोकल थानेदार से जो अंग्रेज था। शी डिड लॉबिंग, शी डिड एडवोकेसी। तो दोस्तों, सावित्री's entire life can be a case study in wisdom to fight not just pandemics, not just plagues, not just famines, which she did, but to fight the viruses of patriarchy, caste, class. Her life is a study in how to organize groups, how to organize campaigns. And through her life, one can see what kind of wisdom, intelligence, love is required to fight all kinds of pandemics, inequalities, to build movements. I salute Savitri Bai, Jyotiba, Fatima Sheikh, and all their comrades who worked together. I owe them my education. I owe them my women's movement. I owe them my feminism. And I salute the women who started Nirmala Niketan. Thank you very much. Zindabad. Thank you so much, Kamla ma'am. We are really truly honored to have you with us today. It will not be an exaggeration to say that you truly have enlightened us today with so many new ideas, so many new concepts. You have actually given us a new perspective to look at things that we probably see every single day. But you know, we have achieved a new perspective to look at things today, and the way you have decoded things and the way you have connected it today with today's scenario, it is, I think no other person could have done it so well the way you have done it. And your speech was truly very engaging, thought-provoking, and very analytical at the same time. And the way you have talked about Savitri Bai Phule's life, the kind of support she got from people, and the way you've connected it with today's scenario, it was a very good learning experience for all of us. Thank you so much, ma'am, for being with us today. Thank you so much. And now I would like to request Renu ma'am to please coordinate the question answer round, as I know many of us will have a lot of questions to ask. So Renu ma'am, please coordinate the question answer round. Yeah, Vaishali, thank you. And thank you to Kamla ma'am for इतना ज़्यादा insightful address, and जिसमें आपने हमें ये समझाने की कोशिश की कि wisdom, सावित्री बाई फुले का जो wisdom है with regard to building movements, with regard to fighting pandemic, with regard to dealing with inequalities of caste, class, वो बहुत ही सराहनीय है और हम बहुत कुछ उनसे सीख सकते हैं
जो विदाउट रीडिंग द लिटरेचर ऑफ इंटरसेक्शनैलिटीज, फेमिनिज्म की जो हम अलग अलग बातें करते हैं, वो सब उन्होंने प्रैक्टिस की उस टाइम पर और उस डिफिकल्ट टाइम में, और हमें उनसे काफी चीजें लर्न करने की जरूरत है, उनकी विजडम पर बिल्डअप करने की जरूरत है हम लोगों को. Having said that, thank you so much, ma'am, and I request participants, आप अपने questions, comments कुछ भी हैं तो अभी या तो आप बोल सकते हैं. Preferably we will prefer कि आप chat box में अगर लिख सकें तो वो better रहेगा. I'll just see if somebody has written anything in chat box. Yeah, any comment, question? Students, can we take first students? हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं मैम, आज फैकल्टी मेंबर्स हैं, कॉलेज के स्टाफ मेंबर्स हैं, कुछ गेस्ट बाहर से भी हैं, दूसरे कॉलेजेस से और इंस्टीट्यूट से हमारे साथ. तो अगर पहले स्टूडेंट्स बोलेंगे तो बेटर है, अदरवाइज देन वी कैन कीप इट ओपन, एनीवन कैन से. तो रेनू उनको प्लीज कहिएगा कि वो पहले खुद को इंट्रोड्यूस करें, कौन है वो, एंड देन राइट ओके, यस. अगर कोई सवाल है तो हाँ करेक्ट. अगर आपका कोई कमेंट, क्वेश्चन कुछ है तो प्लीज आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए पहले, एंड देन मैम से आप बता सकते हैं. हेलो, गुड आफ्टरनून कमला मैम. हाँ, कमला मैम, yes. कविता अग्रवाल फ्रॉम DSW2. यस प्लीज गो ऑन. कविता, गो अहेड. कविता बोलो. कविता, इफ यू कांट स्पीक, चैट बॉक्स में लिख सकती हो. हेलो मैम. हाँ मैम मैं हेलो. हाँ बोलो. सिमरन, मेरा सिमरन बोलो. पुराने में भी मैं पढ़ती हूँ और मेरा क्वेश्चन है कि आपने सावित्रीबाई फुले के बारे में सब बताया जो हमें आप सोशल वर्क में हम प्रैक्टिस करते हैं. आपने पितृसत्ता के बारे में भी बताया था. आपका एक एपिसोड था सत्यमेव जयते में जिसमें आपने पितृसत्ता के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी दी थी. पैट्रियार्की क्या है, उसका मीनिंग क्या है, क्या वो हमें बता सकती है? सिमरन, उसके लिए तो अलग से एक भाषण करो ना, मैं पूरा आके समझाऊंगी तुमको कि पेट्रियार्की क्या है. ब्रीफली इसकी जो मैं डेफिनेशन यूज करती हूँ कि पेट्रियार्की एक सोशल सिस्टम है. मेरी माँ अगर मुझे रोकती हैं कि बाहर मत जा, तो मेरी माँ कोई खराब औरत नहीं है. मेरी माँ बेचारी एक सोशल सिस्टम में फंसी हुई है और उससे डरती है. तो इट इज ए सोशल सिस्टम जिसमें ये माना जाता है कि पुरुष और लड़के सुपीरियर हैं औरतों से और लड़कियों से. और ये वो सिस्टम है जिसमें पुरुषों के पास 3 चीजों पर ज्यादा कंट्रोल होता है. एक, रिसोर्सेज, तमाम रिसोर्सेज, फ्रॉम प्रॉपर्टी to education, to rest, everything. Number 2, decision making. Number 3, control over ideology. हम क्या सोचते हैं, क्या सही है, क्या गलत है, ये सब ज्यादातर मर्द डिसाइड करते हैं. औरतों को कोई हक नहीं है ये डिसाइड करने का. एंड अनफॉर्चुनेटली पेट्रियार्की एक ग्लोबल सिस्टम है. अनफॉर्चुनेटली पेट्रियार्की को सिर्फ मर्द नहीं मानते, औरतें भी मानती हैं. और अनफॉर्चुनेटली पेट्रियार्की का पहला स्कूल हमारे परिवार है. परिवार जहां प्यार और समानता होनी चाहिए, वहां आज भी बहुत से परिवारों में असमानता और हिंसा है. और पेट्रियार्की नए नए रूप धारण करती है. आज इसका जो सबसे विकराल रूप है वो है कैपिटलिस्ट पेट्रियार्की, जो हमें
कॉस्मेटिक्स के जरिए से उल्लू बनाता है, टॉयज के जरिए से उल्लू बनाता है, हॉलीवुड बॉलीवुड के जरिए से पेट्रियार्कल बनाता है। इन तमाम तरीके से पोर्नोग्राफी $1 बिलियन इंडस्ट्री बनाकर हमारे खिलाफ जंग करवाता है। सो वेरी ब्रीफली, और पेट्रियार्की एक स्ट्रक्चर भी है और एक आइडियोलॉजी भी है। पहले हमारे दिमाग में पेट्रियार्की बैठाई जाती है थ्रू फेस्टिवल्स, थ्रू ट्रेडिशंस, थ्रू करवा चौथ, थ्रू कन्यादान, थ्रू ब्लेसिंग्स के दूधो नहाओ पूतो फलो, थ्रू सॉन्ग्स। ये चीज बड़ी है मस्त मस्त, हम चीज हैं, हम तंदूरी मुर्गी हैं जिसे विस्की से गटकाते हैं मर्द, हम लौंडियां हैं जिनको मिस्ड कॉल से पटाते हैं। तो पहले तो ऐसे एक विचारधारा बनाई जाती है हमारे बारे में कि हम इंसान नहीं हैं, हम जिस्म हैं, सिर्फ जिस्म। और एक बार हम जिस्म बन गए तो फिर हमें बसों में नोचा जा सकता है। ठीक जैसे अगर दलित को हम इंसान ना माने, जिस्म मान लें सिर्फ, तो उनको भी जलाया जा सकता है, लिंच किया जा सकता है। तो पहले दिमाग तैयार किए जाते हैं, फिर सिस्टम पैदा किए जाते हैं। तो सिमरन, ये वेरी ब्रीफली इज पेट्रियार्की। थैंक यू। थैंक यू सिमरन, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। या कविता, तुम पूछ पाओगी, बिकॉज तुम कुछ बोल रही थी पहले। हाँ कविता बोलो। आपने भी कहा कि there is lots of educated women. They are for themselves a feminist, but they don't practice in their life. I cannot understand anything. Sorry. कविता, तुम्हारा क्लैरिटी क्लियर नहीं है आवाज, या तो तुम चैट बॉक्स में लिखो क्लियर, अब नहीं आ रहा है आवाज, नहीं सुनाई दे रहा है। I can't understand. या ब्रेक हो रहा है मैम उसका आवाज। आई थिंक शील राइट इन चैट बॉक्स। ओके, बाय द टाइम किसी और का है कुछ कमेंट, एनीथिंग एनीबडी वांट्स टू क्लैरिफाई, आस्क मैम। रेनू मैम, प्रवीण हियर। हाँ प्रवीण। Sarika D'Souza's question is there in chat box. ओके ओके, 1 मिनट, आई जस्ट सी। 1 मिनट मैम, मैं जरा देखती हूँ। सारिका, आई कांट सी। हाँ ओके, सारिका है मैम, हमारी स्टूडेंट BSW सेकेंड ईयर से। शी इज सेइंग, मैम, as you said that Jyotiba Phule and Savitribai sowed the seed for education for the girls, but today we see in some village areas not given importance for girls' education because of cultural practices. So what can be the ways where we can make them understand as social work student? I think she's asking about girls education, promoting girls education in rural areas. तो social worker का क्या रोल हो सकता है वहां पर? देखिए, जहां तक मेरी समझ है वो ये है कि रियली एजुकेशन तो काफी जगह पहुंच गई है, और जहां नहीं पहुंची वहां निर्मला निकेतन के स्टूडेंट्स को भाषण तो नहीं देना चाहिए, जाके वहां रहना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, जैसे सावित्री ने और ज्योतिबा ने। ये भी देखना पड़ेगा कि क्या उनके माँ बाप बेवकूफ हैं, या उनके माँ बाप इतने गरीब हैं कि उनके बच्चों को भी खेतों में काम करना पड़ता है। उनके बच्चों को भी, जब माँ बाप काम पे जाते हैं, छोटे बच्चों को संभालना पड़ता है। उनके लिए ये कहना कि वो बच्चों को नहीं भेजते, वो शिक्षा को नहीं समझते, मेरे ख्याल से जले पर नमक छिड़कना है। कोई भी माँ बाप भेज सकते हैं, वो आज जानते हैं भेजना कितना जरूरी है, लेकिन बच्चों को स्कूल भेजने का मतलब है उनके लिए कपड़े खरीद पाना, उनको काम से छुट्टी दे पाना, और उनको ये भी तो देखना, आजकल वो ये जानते हैं कि उनके जो लड़के हैं जिन्होंने BA भी कर लिया है, MA भी कर लिया है, वो नरेगा में काम कर रहे हैं। तो नरेगा में तो वो बिना MA के काम कर सकते थे, और 15 साल पढ़ाई में जो खर्चे हैं वहां पैसा कमा सकते थे।
तो आप हालत तो देखिए शिक्षा की। अगर आज मैं ऐसी माँ हूं गांव में, मैं भी अपने बच्चे को टाइम वेस्ट करने के लिए स्कूल नहीं भेजूंगी। आई एम टेलिंग यू, जाके देखो तो क्या होता है, आप जरा जाके देखो सारे। क्यों भिजवाना चाहते हैं वहां पर इनको? वो जिंदगी से ज्यादा सीखेंगे बनिस्पत वहां से। हाँ, अगर मिड डे मील मिल रहा है तो वहां जाएंगे, मगर पढ़ाई के नाम पर क्या पढ़ाई होती है? आदिवासी लड़कियां जाके हिंदुइज्म सीख के आती हैं कि कैसे तो करो तो कैसे तो पितृसत्ता को करो। आजाद लड़कियों को वहां डोमेस्टिकेट करते हैं। और इवन इन द बेस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज, फैक्ट्री एजुकेशन, मतलब कोई सावित्री जैसी औरत तो बड़ी, हमारी एमए की बहुत ही कम क्लासेस में से सावित्री निकलेगी, ज्योति निकलेगा। जहां पोटेंशियल है भी उनके निकलने का, वो भी खत्म करके भेजेंगे और कॉम्पिटिशन कराएंगे, कोऑपरेशन बंद करेंगे। पैकेज क्या मिलेगा? एमए की क्लास में जाके जब उनका आएगा ना कि वो रिक्रूटमेंट हो रहा है, कितने का पैकेज है? 5 लाख का पैकेज, 10 लाख का पैकेज है। तो पहले तो मुझे ये बताओ सारिका कि एजुकेशन है कहाँ? अब कैसी एजुकेशन है? So I really feel that one has to really know कि एजुकेशन क्या है, और वो जाके आपने कहा कि हम क्या कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, आप वहां जाइए जहां नहीं है, और पहले पता क्यों नहीं भेज रहे माँ बाप, पता करिए कि वहां के स्कूलों का हाल क्या है, and then see what you can do. Thank you, Sarika. Yeah. थैंक यू मैम। जैसा आपने बोला कि एजुकेशन सिर्फ आइसोलेशन में नहीं है, एजुकेशन सिस्टम, सोशल रिलेटेड वेरियस अदर सिस्टम्स, वेरियस अदर एस्पेक्ट, सिमिलरली एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत काम करने की जरूरत है। और बच्चे सिर्फ पेरेंट्स नहीं उस स्कूल में नहीं भेजेंगे जहाँ जो डिसफंक्शनल स्कूल है या कुछ हो ही नहीं रहा है उन स्कूल की। ओके मैम। साथ ही साथ हमारे पास काफी जो चैट बॉक्स में कमेंट्स आ रहे हैं, उसमें कमेंट्स में everybody is appreciating the talk and it has helped them in terms of establishing linkages के सावित्रीबाई का wisdom in times of pandemic and overall addressing inequalities and inequities in the society। और आज के समाज में जो हो रहा है वो लिंकेजेस एस्टेब्लिश करने में काफी मतलब क्लियर तरीके से आपने एड्रेस किया है अपने लेक्चर में, वो काफी अप्रिसिएशन हमारे इसमें आ रहा है चैट बॉक्स में। एक दो क्वेश्चंस हैं, मैं वो बताती हूँ मैम आपको। एक कुछ क्वेश्चंस हैं, एक अरविंद जी हैं फ्रॉम पुकार ऑर्गेनाइजेशन से, उन्होंने भी काफी अप्रिशिएट किया है। वन क्वेश्चन आई थिंक हमारे स्टूडेंट ही है, निमिषा, BSW सेकेंड ईयर की, उसने सोशल मीडिया के बारे में बोला है। सोशल मीडिया पर when we are putting some post about feminism, there are many people who bully. So these people view feminist women as only who are just unyielding and just doing work and post everything, whether or not it is right or wrong, and have victim mentality. मतलब जो feminist post they are putting on their pages, Facebook pages and all media pages, so it is being considered as victim mentality those women having, and these women are bullied a lot on media. So how do we deal with this? How do we let these people know that it's not what feminism is all about? ये निमिषा है हमारी BSW की स्टूडेंट। तो निमिषा, आई एम नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल। लोग फेमिनिज्म को समझते नहीं हैं। फेमिनिज्म को लोगों ने समझ लिया होता, आज लेक्चर की जरूरत नहीं पड़ती। अगर इतना आसान होता तो कम से कम किसी देश से तो खत्म हो जाती पेट्रियार्की। दुनिया किसी को म्यूट करना पड़ेगा। दिस इज दुनिया का कोई भी देश नहीं है। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है। हाँ मैम। दुनिया का कोई देश नहीं है जहां इक्वालिटी है। तो डोंट बी सरप्राइज्ड निमिषा कि सोशल मीडिया पर ऐसा है। दूसरा ये है कि हम में से बहुत से लोग जिस तरह से फेमिनिज्म को एक्सप्लेन करते हैं, जिस तरह से हम फेमिनिज्म जीते हैं, उसमें भी बहुत गड़बड़ है। मतलब कुछ
कुछ जिसको फेमिनिस्ट पोस्ट कहते हैं उनसे मैं भी एग्री नहीं करती हूँ। कुछ औरतें जो खुद को फेमिनिस्ट कहती हैं, उनकी चाल ढाल से, उनके तौर तरीकों से मैं भी एग्री नहीं करती। तो मुझे लगता है कि ऐसी जो ट्रोलिंग होती है, जो ऑपोजिशन होता है, उसको या तो हम इग्नोर करें और अपनी बात करते रहें, या फिर उसको एक अच्छे डायलॉग की तरह से लें और उस पर बात करें। और इस पर अभी बहुत चर्चा की जरूरत है, बहुत समझ बनाने की जरूरत है, और ये हम लोगों की जिम्मेदारी है जो खुद को फेमिनिस्ट कहते हैं, कि हमारे एक्शन करने का तरीका, हमारी बातचीत, हमारे समझाने का तरीका अच्छा हो। मतलब आजकल कुछ फेमिनिस्ट समझती हैं कि उनका फेमिनिज्म स्ट्रांग हो जाएगा अगर वो एक सेंटेंस में 2-3 बार फक फक करेंगी तो जरा अच्छी फेमिनिस्ट हो जाएंगी, 2-4 गालियां देंगी तो फेमिनिज्म उनका थोड़ा तगड़ा हो जाएगा, थोड़े अपने शरीर को दिखाती हुई बाहर निकलेंगी तो फेमिनिज्म बढ़ जाएगा, या ऊंची हील पहन के निकलेंगी तो फेमिनिस्ट बन जाएंगी। तो मुझे नहीं लगता कि इन चीजों में कहीं फेमिनिज्म है। तो अभी बहुत स्कोप है फेमिनिस्ट को अपनी बात ठीक से कहने का, फेमिनिस्ट को अपनी बात इस तरीके से कहने का कि लोगों को ये ना लगे कि हम मर्दों के खिलाफ हैं। हम मर्दों के खिलाफ नहीं हैं, हम पेट्रियार्की के खिलाफ हैं। और मैं जानती हूं कि कितने मर्दों ने हमारी आजादी के लिए काम किया है, और मैंने उनके नाम भी गिनाए हैं आपको। तो हमें लड़कों मर्दों को साथ लेकर के करना है, हमें घर में भी प्यार से समझाना है और बाहर भी हमें प्यार से समझाना है। तो मुझे लगता है कि काफी कुछ कमियां हम फेमिनिस्ट के अंदर भी हैं और दुनिया में तो हैं ही। कुछ लोग समझना नहीं चाहते क्योंकि वो डरते हैं फेमिनिज्म से, वो डरते हैं कि बराबरी आ गई तो उनकी गद्दी हिल जाएगी। जबकि आज हर पुरुष को ये जान लेना चाहिए कि जब तक औरत आजाद नहीं होगी, पुरुष भी आजाद नहीं हो सकते, क्योंकि औरत और मर्द अलग अलग दुनिया में नहीं रहते। जब तक मैं आजाद नहीं होंगी, मेरा भाई आजाद नहीं हो सकता। मेरे लिए वो दहेज इकट्ठा करेगा, मेरे लिए वो लड़का ढूंढ के लाएगा, और मेरा रेप हो गया तो मुझे बचाता फिरेगा, मुझे कभी स्टेशन छोड़ने जाएगा, कभी बस से लेने जाएगा। वो आजाद कैसे हो सकता है अगर उसकी बहन जो है वो आजाद नहीं है? मैं आजाद हो गई तो अपने पापा को कह सकती हूँ कि पापा डोंट पेस्टर माय ब्रदर, वो म्यूजिक करना चाहता है, वो कथक सीखना चाहता है, मेरे भाई को सीखने दो कथक, मैं करूंगी आपका बिजनेस, अब मेरा भाई आजाद होगा। तो निमिषा भी इसमें बहुत काम करना है, आप लोगों को थोड़ा तैयार हो जाओ। इसीलिए तो मैं आई हूं आपके कॉलेज, ताकि कुछ नई फेमिनिस्ट और तैयार करके जाऊं। थैंक यू निमिषा। थैंक यू मैम, थैंक यू। विल टेक वन लास्ट क्वेश्चन बिकॉज थोड़ा टाइम कंस्ट्रेन है, एंड कविता जो बहुत टाइम से बोलने का ट्राई कर रही थी उसका क्वेश्चन लेते हैं। 1 minute, I'll just tell you. Yeah, Kavita has written something. Yeah, as ma'am you said, I also believe the same, that there are many educated women, they call themselves self-feminist, but they don't follow that belief in their lives. Then how we can change their feminism definition? देखिए, मैं सिर्फ कविता एक ही तरीका जानती हूँ किसी को चेंज करने का, वो है कॉन्वर्सेशन, डिस्कशन। और दूसरा तरीका है दैट वी प्रेजेंट एन ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट बट विद डिग्निटी, विद रिस्पेक्ट। मैं फेसबुक पर देखती हूँ कोई आपसे डिसएग्री किया सीधे गाली गलौज पे आ जाते हैं। आई मीन नो वे टू टॉक। अगर आप बड़ी फेमिनिस्ट हैं तो आप सोचिए कि आपको कितना टाइम लगा, तो उनको भी बेचारों को थोड़ा टाइम दे दो, उनको भी मौका दे दो, उनको भी इज्जत से सिखा दो। So I only know one changing people. I don't believe कि मैं किसी को लिंच करता हूं कि बोलो जय फेमिनिज्म, जैसे लोग कर रहे हैं हमारे देश में कि लिंच करो तो जय फेमिनिज्म। ऐसे नहीं होता है। आप दिखाइए कि फेमिनिस्ट ह्यूमिलिटी क्या होती है, फेमिनिस्ट सेंसिबिलिटी क्या होती है,
फेमिनिस्ट विजडम क्या होती है, और ये दिखाना जो है वो वर्ड्स में कम हो, आपकी पर्सनालिटी में ज्यादा हो, आपके बिहेवियर में ज्यादा हो, फिर आप सीख जाते हैं। किसी ने कहा ना कि डोंट बी अ मैसेंजर, बी द मैसेज। वो है जो कहता है, कहती है कि सत्य अच्छी चीज है। मैसेज वो है जो सत्य बोलता है और उसकी जिंदगी से सत्य टपकता है। तो बी द मैसेज एंड द मैसेंजर ऑफ फेमिनिज्म। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रेनू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कमेंट्स भी हैं, बट ओवरऑल आपका स्पीच, लेक्चर, एड्रेस बहुत ही इंसाइटफुल रहा है और बहुत ही प्रैक्टिकल और सिंपलिस्टिक तरीके से आपने हमसे बात की है मैम। थैंक यू सो मच। आई होप एंड आई रिक्वेस्ट पार्टिसिपेंट्स एंड अदर गेस्ट कि अगर मैम से कनेक्ट करना है तो फेसबुक एंड थ्रू अदर मीडियम्स ऑल्सो शी इज अवेलेबल दैट। तो थैंक यू एंड नाउ ओवर टू वैशाली। मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि मेरा एक डिजिटल कोर्स भी है, 5 घंटे का एक डिजिटल कोर्स है, आप अपनी स्पीड से कर सकते हैं। उसका नाम है फ्रॉम पेट्रियार्की टू इक्वालिटी, बी द चेंज, एंड इट इज फ्री, पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। और दूसरा मेरी YouTube चैनल जो है उसका नाम है कमला भसीन ऑफिशियल। तो ये थोड़ा कमर्शियल ब्रेक था मेरा। थैंक यू। Thank you, ma'am. Vaishali, you can take over now. Thank you so much, ma'am, for answering all our questions so patiently, and thank you so much, ma'am, for being here with us. Now we will wind up with the program, and I would like to invite Dr. Smita to give a formal vote of thanks. Ma'am. Dr. Smita, unmute yourself. Unmute yourself. I feel very honored to extend the vote of thanks for this event today. I would like to first thank our principal, Dr. Lidwin Dias, who has motivated, encouraged, and supported the WDC team, the Women Development Cell team, in our planning and efforts for organizing this meaningful lecture series as part of the Kranti Jyoti Savitribai Lecture Series 2021. Our WDC team would like to extend heartfelt admiration, gratitude to Kamla Basinji for having graciously accepted our invitation to deliver this lecture, and for enriching and revolutionizing our thinking, even in this brief span of time, on women's wisdom in the times of pandemic crisis, how she made analogies to the deeper crisis, the more debilitating virus that is affecting our society. My admiration and appreciation for Dr. Prabha Thirmare, convener, Women Development Cell, for relentlessly working towards ensuring an enriching, thought-provoking lecture series this year. I'd like to extend my appreciation and thanks to Dr. Renu Sharma, my colleague, Ms. Tulba, Mr. Wilson, and our student representatives, Ms. Asha from MSW2, and Ms. Vaishali, who has been the master of ceremonies today, for all their hard work and contribution. And without their inputs and contribution, this event wouldn't have seen light. Also, thanks are due to Mr. Praveen, Mr. Sandesh, Mr. Priyadarshan, Mr. Mukund, and the technical members, technical team members, for organizing and hosting the event glitch-free on the MS Team platform. Most important part of the event are the students, my colleagues, the non-teaching staff, academicians, social work practitioners, activists, feminists, who have all joined today's event
And I would like to extend our thanks and gratitude to one and all. Thank you all and have a pleasant evening. Thank you, Kamlaji. Smita, most important, Smita, we cannot forget आज की Savitri, Mayuri. Yes. Of course, I'm very sorry. So she would be, I extend my thanks, really heartfelt thanks. Even in short notice, Mayuri Lad from MS2, she has prepared and very beautifully given us an expression of Kranti Jyoti Savitribai's life and her wisdom. Thank you, Prabhaji, for reminding. The vote of thanks wouldn't have been complete without mentioning the monologue act by Mayuri. Thank you. Thank you.